Hi everybody, my name is Mohammad Phil Chandio. I am assistant professor at University of Simla, Campus Badin, and presently I am talking from the platform of Paragon Academy Badin. I welcome you all in the 18th session of free online English language course. First of all, I must apologize for my last session, what I couldn't join you because of an official appointment. So sorry for that. I informed you in the meantime. Thank you very much for this all interest and your enthusiasm. So today in this 18th session of English language class, we would talk about verb, and in my last class, that was the 17th session, we also talked about verb, that what verb is and what are action verbs, what are helping auxiliary verbs or tense verb, what are linking verbs and what are modal verbs, and even what are causative verbs. So in that sense, the previous class was designed at the basic level to make students familiar with the basic concepts of verb and how do they work in their language system. Again, remember that language will not only be learnt with the help of this syntax, what we are going to cover now. I have always told you that you have to focus on semantics, phonetics, आपके पास अल्फाज हों, because that is a very key area where you need improvements. When you need language, when you use a particular language, you need a certain vocabulary, and that means frequently used words are the basic vocabulary where from you begin your language. Then whenever you are speaking, whenever you are using that vocabulary, the second most important thing comes the way you pronounce these words. This is very important, and I have already given much focus on this area, that pronunciation should be focused equally and it should be given equal importance in your language. आप अपने तलफ़ुज़ पे भी उतना काम करें जितना आप जो ना मेजॉरिटी तौर पे पाकिस्तान के अंदर देखें, शुरू में हमारी जो ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड था वो सिर्फ ग्रामर पर फोकस हो गया, तो रिजल्टेंटली हमारे साथी ग्रामर एरियाज़ में तो वो ठीक थे, स्ट्रॉन्ग थे। मिसाल के तौर पे हमने ग्रामर को यूँ सिर्फ महदूद कर दिया कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कर देना, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट कर देना, कहाँ पे टेंस को इंटरोगेटिव या नेगेटिव या जो है ना वो अफर्मेटिव में चेंज कर देना। इस तरह की प्रैक्टिस की तरफ हम चले गए और हमने ग्रामर को लैंग्वेज से बिल्कुल डिस्कनेक्ट कर दिया। मीन्स अब यही सेंटेंस में अगर हम स्टूडेंट से पूछें कि यहाँ पे ये सेंटेंस एक्टिव है या पैसिव है, सो दे फील मच डिफ़िकल्टी। या सेंटेंस में जब वो नरेशन पढ़ते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ते हैं, तो वो फिर वो इस सेंटेंस के रूल्स याद रखते हैं कि दिस विल बी कन्वर्टेड इनटू दैट एंड दीज विल बी कन्वर्टेड इनटू दोज एंड हेयर विल बी कन्वर्टेड इनटू देयर एंड कम विल बी कन्वर्टेड इनटू गो। लेकिन जब रियल सेंस में वो लैंग्वेज यूज़ कर रहे होते हैं तो वहाँ पे वो जब कोई वाक़या बता रहे होते हैं तो वहाँ पे उनको ये पता नहीं होता कि यहाँ पे मुझे डायरेक्ट यूज़ करना है या इनडायरेक्ट यूज़ करना है। तो वो कोई बात बताते हुए जब अंग्रेज़ी में कोई वाक़या बता रहे होते हैं तो वो कुछ लिखते यूँ कि उसने कहा कि मैं इस चीज़ को नहीं मानता। अच्छा, अब उसको ये पता नहीं है कि यहाँ पे जो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ ये मुझे जो है ना इन्वर्टेड कामा में रखना चाहिए, नहीं तो फिर ये जो मैं है ये बोलने वाले के खाते में चला जाएगा जो उस टाइम बात कर रहा है। तो जब मैं कह रहा हूँ कि उसने कहा कि मैं इस चीज़ को नहीं मानता, तो अगर ये मैं इस बात को नहीं मानता इसको हम इन्वर्टेड कामा में रखें तो फिर ये बात मंसूब होगी उससे, जिसने कहा है, उसने कहा मैं इस बात को नहीं मानता। लेकिन अगर इस इन्वर्टेड कामा में हम इसको ना रखें तो फिर ये मैं मंसूब हो जाएगा मुझसे, जो मैं इस टाइम बात कर रहा हूँ कि उसने कहा है कि मैं मतलब कि मैं इस बात को नहीं मानता। दीज आर द रियलिटीज़। सो हाँ, या तो वो ये कि उसने कहा है कि वो इस बात को नहीं मानता,
तो वो जो होगा वो फिर उसके बारे में बताएगा. So these are the nitty-gritties of language, grammar, grammatical areas, and almost we have seen students when they are using these areas, then they are not really familiar with the actual position of these syntax part, and how can be better incorporate these grammatical tools in our language to give its appropriate meaning. असल बात जो है वो मीनिंग की है, याद रखें. ग्रामर रूल्स इम्पोर्टेंट नहीं है, असल बात मीनिंग की है. क्योंकि जो आप मतलब बताना चाहते हैं, जो आप बात बताना चाहते हैं वो एग्जैक्ट कन्वे हो. एग्जैक्ट कन्वे ये हो कि उसने कहा है कि वो इस बात को नहीं मानता, वो से मुराद है उसने, ही सेड दैट ही डजंट वांट. ठीक है, तो ही डिडंट एक्सेप्ट दिस थिंग, तो ये फिर उसके ही में जाए ताकि वो बात उससे बने. लेकिन अगर आप ये कह रहे हैं कि ही सेड आई डोंट एक्सेप्ट, तो ये तो फिर आई में आ जाएगा, इसमें आपकी बात आ जाएगी जो पूरे उस मफ़हूम और मतन और मकसद और पूरी उस चीज़ को जो है ना वो चेंज करके रख देगी. तो बेसिक लैंग्वेज नीड्स क्लियरिटी, और यही इंसान की लैंग्वेज में जो है बाकी तमाम लैंग्वेजेस से इंसान की लैंग्वेज जो मुमताज़ है. ये नहीं कि सिर्फ हम इस दुनिया में लैंग्वेज यूज़ करें. लुक एट द बर्ड्स, दे आर यूजिंग, उनके पास भी लैंग्वेज है, वो यूज़ करते हैं. उनके पास ख़तरे के मखसूस साउंड हैं, ख़तरा आता है वो मखसूस आवाज़ निकालते हैं. परिंदे मखसूस आवाज़ निकालते हैं, फिर वो उड़कर चले जाते हैं. लेकिन उनके अंदर दे डोंट हैव दैट टाइप ऑफ ए क्लियरिटी ऑफ ए लैंग्वेज व्हाट ए ह्यूमन लैंग्वेज इज़ ए क्लियरिटी. ह्यूमन लैंग्वेज की जो क्लियरिटी है कि मिसाल के तौर पे वो सिर्फ एक ख़तरे की मखसूस आवाज़ निकाल सकते हैं. बट बीइंग ए ह्यूमन बीइंग, योर लैंग्वेज हैज़ ए क्लियरिटी. आपके लैंग्वेज में यूँ क्लियरिटी है कि आप बताएंगे कि मशरिक़ से 3 टैंक इतनी स्पीड से आ रहे हैं, तो आप सी हाउ मच एग्जैक्ट यू आर इन योर कम्युनिकेशन, कि किस तरफ से आ रहे हैं, ख़तरे की नोयत क्या है, और वो कितनी, उसकी क्वांटिटी क्या है, उसकी तादाद कितनी है, उसको फेस कैसे करना है. So that is the clarity of a human language. Therefore, we think that human language is a more precise, more specific, more clear as compared to the language of animals or birds or other species living on the face of this earth. So अब ये जो क्लियरिटी है ना, ये क्लियरिटी आपके सिंटैक्स के साथ, ग्रामेटिकल कंपोजिशंस के साथ जुड़ी हुई होती है. तो उसी की जो मेटिकुलस कंपोनेंट्स हैं, जो उसी के जो साइंटिफिक एरियाज़ हैं, हाउ डू दे एड टू द मीनिंग. आवर फोकस इज़ मीनिंग, आवर फोकस इज़ द सेंस, द कम्युनिकेशंस व्हाट वी आर गोइंग टू मेक. Not simple we are talking about the grammatical rules, सिर्फ ये कि आप इसको ग्रामर के तौर पे यूँ पढ़ लें. अब ये एक बहुत बड़ी कन्फ्यूजन है कि सर तुफैल ग्रामर को नहीं पढ़ाता या नहीं मानता. अब इन कोर्सेज़ को सुनकर आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि हाउ मच फोकस वी गिव टू ग्रामर. But the way we focus grammar, that is a different than our traditional grammars, okay? Because we believe in a functional grammar, we don't believe in a traditional grammar. Functional grammar, we are concerned that how it is going to function in the language. Because language itself is a complete system of a communication. And these, all the components of a syntax, they have to play a particular function. That function is a very much important because it would denote a particular sense, particular meaning, particular addition in the component of that language, the part of that sentence or whatever. So we have to tackle these things accordingly. So this was just a kind of background of today's class, and now we are switching towards this today's session. Today we will talk about verb, but certain advanced level, because the basic level we have covered in our 17th session, and today in 18th class session we will talk about verb and the advanced areas of verb and how does it work. So please come on, let's move towards this advanced areas of verb. Well, so now look at this. Okay, basically the verb is a word that expresses action performed or refused by the subject or a state experienced by the subject. तो या तो कोई एक्शन हो या वो करे या उससे रिफ्यूज़ करे, या कोई ऐसी स्टेट है जो सब्जेक्ट उसको एक्सपीरियंस करता है. दैट इज़ व्हाट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द वर्ब. ओके,
अब वर्ब जो है ना वो दो किस्म के होते हैं. देयर आर टू कैटेगरीज ऑफ वर्ब. दे आर इंटेंसिव वर्ब्स एंड एक्सटेंसिव वर्ब्स. इंटेंसिव वर्ब्स क्या होते हैं कि ये वो वर्ब्स हैं, दे आर ऑलवेज नीड ए सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट. सेंटेंस का अगर आप कंपोनेंट याद करें तो मैंने आपको सेंटेंस बताया था कि सेंटेंस हैज़ ए टू पार्ट, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. प्रेडिकेट को जब हमने कंप्लीट किया था तो प्रेडिकेट से अंदर या तो खाली वर्ब निकला था अगर इंट्रांजिटिव था, वर्ब और ऑब्जेक्ट दोनों निकले थे अगर ट्रांजिटिव था, वर्ब और दो ऑब्जेक्ट निकले थे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो ये निकले थे, कॉम्प्लीमेंट निकला था. कॉम्प्लीमेंट जो है ना फिर ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो सकता है. ये थोड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, जो आज के हम क्लास में इसको डिस्कस करेंगे. And we will understand that what's the difference between this intensive and extensive verb, as well as what is the difference between subject complement and object complement. तो इंटेंसिव वर्ब वो वर्ब है ना जो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के बारे में बताता है. मिसाल के तौर पे द गर्ल इज़, लड़की क्या है, नाउ अ स्टूडेंट्स एट ए लॉर्ड यूनिवर्सिटी. अब देखें लड़की अभी स्टूडेंट है, नाउ अ स्टूडेंट्स एट द लॉर्ड यूनिवर्सिटी. ये जो बात बता रही है, ये जो काम करे, ये किसके बारे में बता रही है कि लड़की अभी क्या हुई है. देखिए ये वापस जाकर सब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, उसको सपोर्ट कर रहा है, उसको क्लियर कर रहा है. द गर्ल इज़ नाउ. अब ये पूरा कॉम्प्लीमेंट है. जिस तरह मैं कहूँ कि आई एम ए टीचर, तो एम ए टीचर ये कॉम्प्लीमेंट है. शी इज़ माई सिस्टर, शी सब्जेक्ट है, इज़ माई सिस्टर कॉम्प्लीमेंट है. तो अगर वो सब्जेक्ट के बारे में आकर जो ना बताए, सब्जेक्ट को क्लियर करे, सब्जेक्ट को जाकर जो है ना वो हेल्प करता है, तो ऐसे को हम सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहते हैं. कि द गर्ल इज़ नाउ अ स्टूडेंट्स एट ए लॉर्ड यूनिवर्सिटी, दैट इज़ वेयर, कि वो अभी जो है ना वो लॉर्ड यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट है. वसीम ग्रू रिच ग्रेजुअली. वसीम आस्ता आस्ता रफ्ता रफ्ता अमीर बना. अब इसमें जो ग्रू रिच है, ये पूरा जो है जो ना ये ग्रू तो इसका वर्ब है, इंटेंसिव वर्ब है, लेकिन रिच ग्रेजुअली जो है ना ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, जो क्या बता रहा है कि वसीम क्या बना, वसीम अमीर बना, रफ्ता रफ्ता आस्ता आस्ता अमीर बना. तो अमीर बना, रफ्ता रफ्ता अमीर, रफ्ता रफ्ता अमीर, ये है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट. वर्ब क्या है, ग्रू. क्या, अब देखिए बात हो रही है किसकी, वसीम की. वसीम को क्या हो रहा है, वसीम ग्रू, बढ़ रहा है. अब क्या बढ़ रहा है, अब रिच ग्रेजुअली. तो ये रिच दोबारा किसको क्वालिफाई करने जा रहा है, देखें वसीम को, ग्रू को नहीं, वसीम को. तो ये जो होते हैं ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होते हैं. दे आर टॉकिंग अबाउट दिस एरिया वेल. सो द गर्ल इज़ नाउ स्टूडेंट. अब ये पहला इंटेंसिव वर्ब होता है. एक्सटेंसिव जो वर्ब्स होते हैं इनको आप इंट्रांजिटिव भी यूज़ कर सकते हैं या इनको आप ट्रांजिटिव भी यूज़ कर सकते हैं. लेकिन व्हेन एक्सटेंसिव वर्ब्स आर यूज्ड एज इंट्रांजिटिव दे डोंट परमिट एनी फोर ऑब्जेक्ट. ओके, अब देखें जो इंट्रांजिटिव वर्ब जब होता है तो उसको फिर ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती उस सेंटेंस के अंदर. सो वी कॉल इट इंट्रांजिटिव वर्ब. ओके, इट डजंट हैव ऑब्जेक्ट, वी कॉल इट इंट्रांजिटिव. ये थोड़े जो चार जो ऑब्जेक्ट यूज़ हो सकते हैं मुतवक्का, जो ये आपके पास अभी सामने इस टाइम स्क्रीन पे मौजूद हैं. इस पे मैं बहुत डिटेल में बात करूँगा, इसको समझने की हम इसको समझेंगे कि एक्सटेंसिव वर्ब जो है ना वो किस तरह काम करते हैं. अब अगर वर्ब आप यूज़ कर रहे हैं इंट्रांजिटिव, मिसाल के तौर पे आप कहते हैं अली लाव्स. अब इसको आगे किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है, ये कोई ऑब्जेक्ट नहीं इसको जो है अलो करेगा. वाई, बिकॉज द लॉफ इज़ इंट्रांजिटिव वर्ब. दे गव, ये गव, इसको भी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना इसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पड़ेगी, ना इनडायरेक्ट, ना इसको सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट चाहिए, ना इसको ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट चाहिए. तो एक्सटेंसिव वो वर्ब होते हैं जब इंट्रांजिटिव यूज़ होते हैं तो इनमें इनके पास कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता. बट जब व्हेन वी यूज़ देम ट्रांजिटिवली देन दे नीड ऑब्जेक्ट. ओके, जब इसको आप ट्रांजिटिवली यूज़ करते हैं देन दे नीड ऑब्जेक्ट. अब नीचे ये सेंटेंसेस हैं, पहले दो सेंटेंसेस को देखें कि इट रेन्ड steadily all the day. It rained, बारिश हुई. ओके, एंड कैसे बारिश हुई, steadily all the day. ये क्या होगा, इसको अगर आप सेंटेंस के एतबार से देखेंगे
तो ये जो है वो एडवर्बियल है। सेंटेंस के पार्ट याद करें, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, और प्रेडिकेट में से क्या निकला था, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट और एडवर्बियल। एडवर्बियल बताता है कि वो एडवर्ब के तौर पे बिहेव करता है। अब इट रेन्ड, बारिश तो हुई, कैसे हुई, स्टेडली ऑल द डे। ये स्टेडली ऑल द डे ये यहाँ पे सेंटेंस के एडवर्बियल है, लेकिन इसके पास कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। ऑब्जेक्ट कैसे होता, अगर मैं कहूँ आई राइट अ लेटर, आई राइट अ लेटर, तो इसमें राइट वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब है, लेटर उसका ऑब्जेक्ट है। मैं इसमें दो ऑब्जेक्ट अगर यूज़ करूँ इस सेंटेंस में तो मैं कहूँगा आई राइट अ लेटर टू वसीम। अब एक इसमें जो है ना वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वसीम, दूसरा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेटर। अगर इसी सेंटेंस को आई राइट अ लेटर टू वसीम, अगर इसी को जो इस टाइम जो है वो ऑब्लिगेटिव केस है नाउन का, अगर मैं इसको डेटिव केस में कन्वर्ट करूं तो मैं इसको यूं भी लिख सकता हूं कि आई राइट वसीम अ लेटर, आई राइट वसीम अ लेटर, आई राइट अ लेटर टू वसीम, जिसमें हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के दरमियान प्रीपोजिशन रख रहे हैं। इसमें हम डायरेक्ट लगा सकते हैं कि आई राइट अ लेटर, आई राइट वसीम अ लेटर, तो वो उसमें हम ऑब्जेक्ट यूज़ करें। ये ट्रांजिटिव वर्ब है, हियर देयर इज नो ऑब्जेक्ट। इट रेन्ड स्टेडली ऑल डे, या दे वर्कड स्लोली, दे वर्कड स्लोली, उन्होंने काम तो किया, कैसे किया, स्लोली। अगेन स्लोली इज एडवर्बियल। तो जो एक्सटेंसिव वर्ब होते हैं, एक्सटेंसिव वर्ब में हम क्या करते हैं कि अगर उसको हम इंट्रांजिटिव यूज़ करते हैं तो ये चारों ऑब्जेक्ट उसके पास नहीं आते। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या हुआ, आई राइट अ लेटर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या हुआ कि आई राइट अ लेटर टू वसीम, तो वसीम यहाँ पे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अब देखिए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का पता कैसे चलेगा, आप वर्ब को देखो, वर्ब क्या है। जब मैं कह रहा हूँ आई राइट अ लेटर टू वसीम, तो इसमें वर्ब राइट है। तो अब देखो राइट में डायरेक्ट लिखना वर्ब है, राइट लिखना। अब सवाल है कि लिखा क्या जा रहा है, तो जवाब आएगा ख़त लिखा जा रहा है। तो लिखने का डायरेक्ट जो रिश्ता है वो ख़त से है। फिर वो किससे लिखा जा रहा है, वसीम को, वो उसका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। आई बाय आइसक्रीम फॉर चिल्ड्रेन, बाय वर्ब है, अब क्या ख़रीदा जा रहा है, आइसक्रीम, तो आइसक्रीम क्या बना, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। आई बाय आइसक्रीम फॉर चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन क्या बना, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। हाँ, अगर इसको आप डेटिव करोगे तो आप कहोगे आई बाय चिल्ड्रेन आइसक्रीम, आई बाय चिल्ड्रेन आइसक्रीम, तो भी इसमें बाय वर्ब हो जाएगा। आइसक्रीम जो है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, चिल्ड्रेन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। लेकिन अब आप प्रीपोजिशन नहीं रखेंगे, आप वर्ब के बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। आई बाय चिल्ड्रेन आइसक्रीम, आई बाय चिल्ड्रेन आइसक्रीम। और अगर प्रीपोजिशन रखना है तो आपको रखना पड़ेगा आई बाय आइसक्रीम फॉर चिल्ड्रेन। तो ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। फिर सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आप ऊपर देख चुके हैं, जिस तरीके से आया था कि वसीम ग्रू रिच ग्रेजुअली, ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स वो होते हैं जो ऑब्जेक्ट के तौर पे काम करते हैं, जो नीचे सेंटेंस में आएंगे, तो वी विल डिस्कस हाउ व्हाट आर दे। तो अगर आप इस वर्ब को, अब ये तो तय हुआ कि जब आप इसको ट्रांजिटिव यूज़ करोगे तो फिर ये चारों ऑब्जेक्ट ये एक नहीं आएंगे, ना डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा, ना इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा, ना सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आएगा, ना ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स आएगा। लेकिन जब आप एक्सटेंसिव वर्ब्स को ट्रांजिटिव यूज़ करोगे तो फिर आपके पास ये सब ट्रांजिटिव जो है ना आ सकते हैं। उसमें फिर वर्ब या मोनो ट्रांजिटिव होता है, या डाई ट्रांजिटिव होता है, या जो है ना वो कम्प्लेक्स ट्रांजिटिव होता है। तीन किस्म के, क्योंकि अब इसको ट्रांजिशन चाहिए, ट्रांजिटिव वर्ब है तो इसको ट्रांजिशन चाहिए। अगर इसके पास एक वर्ब है जो डायरेक्ट वर्ब है तो उसको मोनो ट्रांजिटिव कहा जाता है। आई राइट अ लेटर, ये लेटर इसका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। दिस इज कॉल्ड मोनो ट्रांजिटिव इन एक्सटेंसिव वर्ब। शी हैड गिवन द गर्ल एन एप्पल, शी हैड गिवन। अब इसमें मेन वर्ब क्या है, गिवन। गिवन क्या दिया है, एप्पल दिया है। एप्पल इसका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। किसको दिया है एप्पल, गर्ल को दिया है। शी हैड गिवन द गर्ल एन एप्पल, ये डाई ट्रांजिटिव कहलाता है। मीन्स इसमें दो जो है ना वो ऑब्जेक्ट हैं। अगर एक ऑब्जेक्ट होता है तो मोनो ट्रांजिटिव, दो ऑब्जेक्ट होते हैं तो डाई ट्रांजिटिव। अब सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो रहा है, दे मेक हिम द चेयरमैन, दे मेक हिम
वो उसे क्या बनाते हैं, द चेयरमैन एवरी ईयर। सो दिस इज कॉल्ड कम्प्लेक्स ट्रांजिटिव। ये कम्प्लेक्स जो है ना वो ट्रांजिटिव है, इसमें जो अपना चेयरमैन एज के तौर पे आ रहा है, ये इसका जो है ना एज ए ऑब्जेक्ट बन रहा है कि दे मेक हिम द चेयरमैन एवरी ईयर। तो इस तरीके से यू कैन यूज़ इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव वर्ब्स। अब दोबारा बता दूँ, इंटेंसिव वर्ब्स वो होते हैं जिनको में जो है ना वो जो उनको ट्रांजिशन जो चाहिए होती है, वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट चाहिए होता है सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए। एक्सटेंसिव जो वर्ब होते हैं अगर ट्रांजिटिव होते हैं तो ये चारों ही उनके अंदर नहीं यूज़ किए जा सकते। फिर वो सिर्फ ना उसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ना इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ना सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ना ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अगर आप एक्सटेंसिव वर्ब को ट्रांजिटिवली यूज़ करेंगे, जिस तरीके से रेन यूज़ हुआ है या वर्क यूज़ हुआ है, अगर आप इसको एक्सटेंसिवली यूज़ करोगे तो फिर इसके पास जो है ना वो ट्रांजिटिवली तो यूज़ करोगे एक्सटेंसिव वर्ब को, तो फिर इसके पास डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी आ सकता है, इसमें पास डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों ऑब्जेक्ट भी आ सकते हैं, इसके पास कम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट भी आ सकता है, कम्प्लेक्स ट्रांजिटिव भी हो सकता है। So these are the areas regarding this intensive and extensive verbs. Okay. अब दूसरा जो वर्ब होते हैं, दे आर आइदर स्टेटिव और डायनामिक्स। स्टेटिव वो वर्ब्स होते हैं जो हम डायनामिक वो वर्ब्स होते हैं जिनको हम प्रोग्रेसिव सेंस में यूज़ कर सकते हैं। ऑल दोज वर्ब्स विच कुड बी यूज्ड इन ए कंटिन्यूस फॉर्म, इन ए प्रोग्रेसिव फॉर्म, इन फॉर्म, दे आर कॉल्ड एज ए डायनामिक वर्ब। When you say that we waited for him, wait is a verb. It is used second form of verb or past participle, but you can past form, but you can use it also via we were waiting. Waiting, you can use it in a continuous form. So all those verbs, they are used in a progressive form. They are called dynamic verbs. लेकिन all those verbs they are not used in a progressive form. They are called stative verbs. कुछ ऐसे verb हैं जिनको कभी भी आप continuous sense में नहीं यूज़ कर सकते। मिसाल के तौर पे, अब वसीम इज़ नाउ ए लेक्चरर एट यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध। अब आप क्या कहेंगे कि वसीम इस को आप कंटिन्यूस नहीं कर सकते ना, कैसे यूज़ करेंगे? या अगर मिसाल के तौर पे आप कहेंगे ही नोज़ द आंसर, उसको आंसर आता है, लेकिन ये कहना कि ही इज़ नोइंग द आंसर, दैट्स नॉट अप्रोप्रिएट वे। इस तरीके से हम जो है ना वो नहीं यूज़ करते इनको कंटिन्यूस फॉर्म को जिस तरीके से। तो ये कुछ ऐसे वर्ब हैं जिनको हम अवॉइड करते हैं जो कंटिन्यूस फॉर्म में नहीं यूज़ होते, दे आर कॉल्ड एज ए स्टेटिव वर्ब। और एक बात और बता दूं जो अक्सर तौर पे हमने देखा है कि चूँकि हम अपनी जब ज़बान में उर्दू या सिंधी में जब बात करते हैं तो हम बहुत सी चीज़ें कंटिन्यूस सेंटेंस में, मिसाल के तौर पे हम कहते हैं मैं खाना खा रहा हूँ, ओके, मैं घर जा रहा हूँ, तो ये वो चीज़ें होती हैं, या वो घर जा रहा है, ये वो चीज़ें होती हैं जो उर्दू सिंधी में कंटिन्यूस टेंस में यूज़ की जाती है। तो हमने अक्सर नोट किया है कि ज़्यादा तौर पे स्टूडेंट्स जब लैंग्वेजेस यूज़ करते हैं इवन अंग्रेज़ी में, तो वो अपनी लैंग्वेज का जो सिस्टम है ना उसी को अंग्रेज़ी में ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं। तो आपसे अगर मैं पूछूं कि आप क्या कर रहे हो, तो आप ज़रूर कंटिन्यूस में बोलोगे कि आई एम वॉचिंग टेलीविज़न, लेकिन आई वॉच टेलीविज़न, ये ज़्यादा बेहतर होगा इसके बजाय कि आप यूज़ करें कि आई एम वॉचिंग टेलीविज़न। या मैं कहूँ जी आप क्या करते हो, तो अक्सर लोग कहते हैं कि मैं जी हॉस्पिटल में काम कर रहा हूँ मकसद, लेकिन यहाँ पे उसको कंटिन्यूस की जगह पर अगर ये यूज़ करना चाहिए कि आई वर्क इन ए हॉस्पिटल, ये जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है ये ज़्यादा सूटेबल होगा इसके बजाय कि वो कंटिन्यूस में कहे कि आई एम वर्किंग एट अ हॉस्पिटल, आई एम वर्किंग एट अ हॉस्पिटल। इससे बेहतर होगा ही शुड से दैट आई वर्क एट अ हॉस्पिटल, आई टीच एट द यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध। ये ज़्यादा बेहतर होगा कि मैं कहूँ कि आई एम टीचिंग एट द यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध। वो जो है ना हम तब लगाते हैं कि जब कोई भी काम थोड़ी देर के लिए जारी हो तो हम लगाते हैं आई एम टीचिंग, अदरवाइज वी शुड से दैट आई टीच एट द यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध। सो दिस इज हाउ वी कैन यूज़ स्टेटिव एंड ए कम्प्लेक्सिव वर्ब। ओके, अब आते हैं फाइनाइट और जो है ना वो नॉन फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब वो होते हैं जो हम यूज़ करते हैं, पर्टिकुलर वो वर्ब हैं। देखिए ये फाइनाइट है, ये महदूद है। महदूद ऐसे हैं कि इसमें आपको टेंस का या वर्ब एग्रीमेंट का इसका ख्याल रखना पड़ेगा, नहीं तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। मिसाल के तौर पे इसमें जो है ना दे आर ऑलवेज एग्रीमेंट बिटवीन द सब्जेक्ट आ पर्सन आ नंबर एंड द फाइनाइट वर्ब। इनमें आपको जो है वो इन चीज़ों का ख्याल करना पड़ेगा, टेंस का ख्याल करना पड़ेगा, वर्ब एग्रीमेंट का ख्याल करना पड़ेगा, सब्जेक्ट पर्सन नंबर का ख्याल करना पड़ेगा। अब देखिए, अब दे वर्क इन द फील्ड,
अब ये वर्क और वर्कड में फ़र्क क्या है? ये टेंस का फ़र्क है, ठीक है। ये वर्क को आप माजी में नहीं लगा सकते और वर्कड को आप प्रेजेंट में नहीं लगा सकते। ये महदूद है, ये फाइनाइट है, महदूद है, एक मखसूस सिचुएशन के लिए महदूद है। इससे बाहर वर्कड को जब पास्ट से बाहर ले जाओगे, इट विल नॉट वर्क, वर्कड विल नॉट वर्क इन अ प्रेजेंट। इसी तरीके से खाली वर्क पास्ट में काम नहीं करेगा, ये प्रेजेंट के लिए महदूद है, ये पास्ट के लिए महदूद है। सो दैट इज़ कॉल्ड फाइनाइट वर्ब, जिसमें कोई ना कोई रिस्ट्रक्शंस होती है। नाउ सी व्हेन यू से अली कम्स, ये कम्स क्यों है? क्योंकि अली सिंगुलर है। जब भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सब्जेक्ट सिंगुलर होता है, हम वर्ब के साथ एस लगाते हैं। अली कम्स, शी गोज़। लेकिन दे कम, अब दे में आप एस नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि ये जो प्लूरल है, सब्जेक्ट प्लूरल है, तो वर्ब के साथ एस नहीं लगेगा। अली के साथ सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब के साथ एस लगाना है। यहाँ पे देखें वर्ब एग्रीमेंट का फ़र्क आ रहा था। ये फाइनाइट वर्ब है, ये महदूद है उस सिचुएशन में लगने के लिए, और ऊपर टेंस का फ़र्क था, यहाँ पे वर्ब एग्रीमेंट का था। इफ़ दे वर ईटिंग दे वुड सिट, ये सब्जेक्टिव मूड है। अगर वो खा रहे होते तो यकीनन वो बैठे होते। शट द विंडो, शट द विंडो, ये इम्परेटिव मूड है। तो जो फाइनाइट वर्ब्स होते हैं उनके पास एक अपना मूड होता है। वर्ब के 3 मूड होते हैं। इंडिकेटर मूड होता है, सब्जेक्टिव मूड होता है, इम्परेटिव मूड होता है। और ये आगे चल के ये मूड भी पढ़ाऊंगा कि व्हाट आर दीज मूड्स एंड हाउ दे वर्क। ओके, सो यहाँ पे 2 मिसालें तो गुजरी हैं, लेकिन मैं इंडिकेटर मूड और सब्जेक्टिव मूड और इम्परेटिव मूड को कैटेगरी के लिए आगे आज ही की क्लास में आई विल डिस्कस इट। ओके, तो फाइनाइट वर्ब में ये 2 चीज़ें जहन में रखें कि इसमें आपको एक तो ये चीज़ है कि इसमें टेंस का, वर्ब के एग्रीमेंट का, सब्जेक्ट की एग्रीमेंट का, नंबर का, दे आर कमिंग है, शी इज़ कमिंग है। अब दे आर क्यों? क्योंकि प्लूरल है। शी इज़ क्यों? बिकॉज शी इज़ सिंगुलर, सो वी हैव टू पुट इज़। Here we are bound because of subject, because of verb, because of person, because of number और because of a mood। Okay, अब नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होते हैं? नॉन फाइनाइट वो वर्ब होते हैं जिनका मूड जो महदूद नहीं होते, उसमें ये चीज़ें जो है आप नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पे आप जो है वो इनको किसी भी टेंस के लिए, किसी भी सब्जेक्ट के लिए महदूद नहीं कर सकते, क्योंकि ये महदूद नहीं है, ये नॉन फाइनाइट है। विच आर इन्फिनेटिव फॉर्म टू रीड, या तो आप इसको इन्फिनेटिव फॉर्म में लगाते हैं टू रीड। द इंग आर प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म रीडिंग, एंड द ईडी आर पास्ट फॉर्म्स पास्ट पार्टिसिपल। ये वो वर्ब हैं जिनको आप या तो इन्फिनेटिव के तौर पे यूज़ करते हैं, या इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल इंग फॉर्म के तौर पे यूज़ करते हैं, या पास्ट पार्टिसिपल ईडी के फॉर्म में यूज़ करते हैं। दीज आर 3 वे टू यूज़ दिस फॉर नॉन फाइनाइट वर्ब। नॉन फाइनाइट वर्ब जो है इसके ऊपर टेंस वर्ब या इसकी जो एग्रीमेंट के इश्यूज नहीं होते, इनसे ये आज़ाद हो जाते हैं। अब देखें जो इन्फिनेटिव की पहली एग्जांपल आप देखें, ऊपर है कि ही ड्रिंक्स वाइन हैविली। ये ड्रिंक जो है ना, ये फाइनाइट वर्ब है। अब ही के साथ है ना, यहाँ पे आपको वर्ब के साथ एस लगाना है, आपकी मजबूरी है। अच्छा, अगर यहाँ पे आप सब्जेक्ट चेंज करें, ही की जगह पर वी रखें, तो आपको एस हटाना पड़ेगा, वी ड्रिंक। ओके, हाँ, लेकिन टू ड्रिंक लाइक दैट मस्ट बी लेथल टू हेल्थ। इसी तरह पीना यकीनन सेहत के लिए ख़तरनाक है। लेथल का मतलब है ख़तरनाक, लेथल टू हेल्थ। लेथल के साथ फिक्स और डेफिनेट प्रीफिक्स से लगता है टू, लेथल टू हेल्थ। ये चीज़ सेहत के लिए ख़तरनाक है, इट्स वेरी लेथल टू हेल्थ। ओके, सो टू ड्रिंक। अब देखिए, टू ड्रिंक में आपको कोई वर्ब एग्रीमेंट का इशू नहीं आएगा, कोई सब्जेक्ट का भी नहीं आएगा। टू ड्रिंक वाइन इज़ गुड फॉर हिम, टू ड्रिंक वाइन इज़ गुड फॉर देम। ओके, हम इस वर्ड वाइन को टी से चेंज कर दें। टू ड्रिंक टी इज़ गुड फॉर हिम, तो भी टू ड्रिंक है, आगे हिम है। टू ड्रिंक टी इज़ बेटर फॉर देम, अब देम है, देम के साथ भी आगे टू ड्रिंक है, ही के साथ भी आगे टू ड्रिंक है, शी के साथ भी आगे टू ड्रिंक है। टू ड्रिंक टी इज़ गुड, अच्छा प्रेजेंट टेंस है। टू ड्रिंक टी वॉज गुड, वॉज आ गया पास्ट टेंस है। ड्रिंक को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, ना टू ड्रिंक में को ना ऑब्जेक्ट के साथ, सब्जेक्ट के साथ फ़र्क पड़ रहा है, ना टेंस के साथ फ़र्क पड़ रहा है, वो अपनी जगह को मेंटेन रखा हुआ है।
लेकिन इसी ड्रिंक को अगर हम इन्फिनेटिवली यूज़ करें तो इसको टेंस में मैटर करेगा, ही ड्रिंक्स भी करेगा। अगर इसको सब्जेक्ट में देखें, अब दे अगर हम कहें दे ड्रिंक, तो दे के साथ हम ड्रिंक से एस हटाना पड़ेगा क्योंकि वहाँ पे हम एस नहीं रख सकते। दे के साथ अगर हम एस रखेंगे तो फिर वो हमारा सेंटेंस गलत हो जाएगा, वी हैव टू रिमूव दिस दे। ओके, इसी तरीके से अगर हम कहें कि ही ड्रिंक्स, लेकिन अगर इसका पास्ट करेंगे तो हमें ही ड्रिंक लगाना पड़ेगा, हमें वर्ब चेंज करना पड़ेगा। लेकिन नीचे देखें टू ड्रिंक, अगर टेंस चेंज हो रहा है तो भी सेम है। टू ड्रिंक टी इज गुड, इज। टू ड्रिंक टी वॉज गुड, वॉज। टेंस चेंज हो गया लेकिन वर्ब ने अपनी पोजीशन उसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ये नॉन फाइनाइट है, ठीक है, ये इससे बालातर काम करेगा, वर्ब से भी टेंस से भी इसके ज़ुमरे में नहीं आएगा। अब ये जो नॉन फाइनाइट वर्ब यूज़ होते हैं, या तो ये इन्फिनेटिव यूज़ होते हैं जब हम इनके साथ ट लगाते हैं, टू राइट, टू प्ले, टू कम, टू गो, या जब हम इनके साथ इंग लगाते हैं, ठीक है, या जब हम इनके साथ ईडी लगाते हैं। अब देखिए ही इज़ लाफिंग, अब यहाँ पे जो है ये फाइनाइट है, लाफिंग इज ओके। अगर मैं इसको टेंस में हम चेंज करें ही लाफ, तो हमें इंग को चेंज करना पड़ेगा। हम ये तो नहीं कह सकते हैं ना कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम कहें कि ही लाफिंग, नो, ही लाफ्स। इसका पास करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, ही लाफ्ड, हमें चेंज करना पड़ेगा। लेकिन लाफिंग देखें नीचे जो यूज़ हुआ, आई फाउंड हिम लाफिंग, मैंने उसको हंसता हुआ पाया। आई फाउंड हिम लाफिंग, मैंने उसे हंसता हुआ पाया। अब ये जो लाफिंग है ना, इस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आगे आप सेंटेंसेस को कैसे भी चेंज करें। आई फाउंड हिम लाफिंग, अब हम कह रहे हैं कि आई फाउंड देम लाफिंग, तो भी लाफिंग, हिम के साथ भी लाफिंग, देम के साथ भी लाफिंग। अब ये प्रेजेंट पास्ट टेंस है, आई फाउंड, आओ इसको हम चेंज करें प्रेजेंट में, आई फाइंड हिम लाफिंग। अब आओ इसको फ्यूचर में चेंज करें, आई शैल फाइंड हिम लाफिंग, यू विल फाइंड हिम लाफिंग। अब ये नहीं चेंज हो रहा, दिस इज कॉल्ड नॉन फाइनाइट वर्ब। तो फाइनाइट वर्ब जो होते हैं वो टेंस पे, नंबर पे, सब्जेक्ट्स के साथ उसकी जो है एग्रीमेंट मैटर करती है, लेकिन जो नॉन फाइनाइट वर्ब होते हैं उनको इस तरह की चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती, एंड दे सिंपली वर्क एज व्हाट वी कॉल दैट दे कुड बी यूज्ड एज ए इन्फिनेटिव फॉर्म और इन ए प्रेजेंट पार्टिसिपल। देखिए प्रेजेंट पार्टिसिपल जो जब वर्ब के साथ हम ट लगाते हैं तो वी कॉल इट इन्फिनेटिव फॉर्म, और जब इंग लगाते हैं तो इसको हम इंग फॉर्म भी कहते हैं, इसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म भी कहते हैं, और जब वर्ब के साथ ईडी लगाते हैं तो इसको हम पास्ट पार्टिसिपल भी कहते हैं, जिसको आमतौर पे हम थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब कहते हैं, और प्रेजेंट पार्टिसिपल को हम फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब कहते हैं। याद रखें पिछले दिन मैंने क्लास में बताए थे वर्ब की रूट होती है, रूट के बाद जब फर्स्ट फॉर्म होता है उसको इन्फिनेटिव कहा जाता है, जो सेकंड फॉर्म होता है उसको पास्ट जॉन ऑफ फॉर्म कहा जाता है, जो थर्ड फॉर्म होता है उसको पास्ट पार्टिसिपल कहा जाता है, जो फोर्थ फॉर्म जो होता है उसको इंग फॉर्म भी कहा जाता है और प्रेजेंट पार्टिसिपल भी कहा जाता है। उसके बाद नाउन या तो अपना नाउन बनाता है या जेरिन बनाता है। ये जितने भी यूज़ हो रहे हैं दे आर वर्किंग एज ए नाउन के तौर पे यूज़ हो रहे हैं, सो दे आर गोइंग टू सर्व इन दिस सेंटेंस। अब आते हैं वर्ब की मूड पे। जिस तरह मैंने जिक्र किया कि वर्ब्स हैज़ ए 3 moods। मैंने पहले बता चुका हूँ कि आज की क्लास हम थोड़ा वर्ब को एडवांस लेवल पे एक्सप्लोर कर रहे हैं एंड लाइक दैट। सो जब वर्ब की मूड्स पे आप आते हैं देन यू जस्ट डिस्कस these are 3 ways to understand that what are the different moods. Actually particular method are mood to use method are more to use a verb to denote, express or mention to a particular action. There are 3 kinds of moods in English language. पहला इंडिकेटर मूड होता है। इंडिकेटर मूड में 2 चीज़ें होती हैं, आप कोई फैक्ट बताएं, कोई क्वेश्चन बताएं या कोई सपोजिशन बताएं, दैट इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड इंडिकेटर मूड। कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका इन 1492, ये किस्म की स्टेटमेंट है कि कोलंबस ने अमेरिका को 1492 में ढूंढ के निकाला। हैव यू डाइन्ड, क्या आपने खाना खा लिया है, दैट इज़ ए क्वेश्चन। इफ़ दे कम आई विल इन्फॉर्म यू, अगर वो आते हैं मैं आपको बताऊंगा, इफ़ दे कम, ये एक सपोजिशन है। अब कोई सपोजिशन, कोई सवाल, कोई स्टेटमेंट, कोई इस तरह के फैक्ट वगैरह बता दिया जाए, हम इसे कहते हैं इंडिकेटिव मूड। दिस फर्स्ट मूड इंडिकेटिव।
इम्परेटिव मूड के अंदर हम क्या करते हैं कि या किसी को आप कोई हुक्म दें, कोई सलाह मशवरा दें, कोई जो है ना वो रिक्वेस्ट करें। इंटीटी का मतलब है रिक्वेस्ट करना, इम्प्लोर करना, बिसीच, इम्प्लोर, बिसीच, इंटीटी। किसी से आप जो रिक्वेस्ट करते वी यूज दिस वर्ड बिसीच एंड इंटीटी इज नोन एज इम्परेटिव वर्ब। फेच मी ए ग्लास ऑफ वाटर, मुझे पानी पिलाओ, दैट्स एन ऑर्डर। बी सबमिसिव एंड अप्लाई टू आवर फेलोज, अपने फेलोज से सबमिसिव रहो, मेहरबान रहो। और सबमिसिव का मतलब ये होता है कि आजिज, सबलाइम से है, किस हद तक हम्बल। एंड पोलाइट का मतलब होता है मेहरबान, काइंड और नरम तरीके से गुफ्तगू करने वाला। सो बी सबमिसिव एंड पोलाइट टू योर फेलोज, अपने दोस्तों के साथ जो है मेहरबान और संजीदा और केयरफुल या जो है आजिज रहो। ये एक मशवरा है, दिस कॉल्ड इम्परेटिव मूड। इम्परेटिव मूड में हम हुक्म भी देते हैं, हम एडवाइस भी देते हैं। या इंटीटी क्या होता है? इंटीटी ये होता है कि जब आप किसी से कोई इल्तिजा करते हैं, इल्तिजा विल बी एप्रोप्रिएट टर्म फॉर इंटीटी। मे आई यूज़ योर कंप्यूटर प्लीज़, क्या मैं आपका कंप्यूटर इस्तेमाल कर सकता हूँ जी? दैट इज़ ए काइंड ऑफ अ इंटीटी। परमिशन का सेंस भी है, और लेकिन इस परमिशन को आप इंटीटी में इल्तिजा में भी चेंज कर सकते हैं। वैसे जो एक परमिशन होती है कि मैं आ कम इन द क्लास, तो ये एक सिंपल परमिशन है, लेकिन इसी परमिशन को आप इल्तिजा के सेंस में भी यूज़ कर सकते हैं अगर आप इसमें अपने तो उस टोन को चेंज कर दें। क्या सर मैं आपकी क्लास में आ सकता हूँ प्लीज़? दैट इज़ वेयर कि आपको टीचर नहीं अलो कर रहा और आप उसको बार बार इल्तिजा कर रहे हैं, मिन्नत कर रहे हैं। यू यूज़ लाइक दिस एंड वी कॉल इट ए काइंड ऑफ इंटीटी। सो दिस टाइम विल फॉल इन टू द कैटेगरी ऑफ इंटीटी। मे आई यूज़ योर कंप्यूटर प्लीज़। सो सब्जेक्टिव मूड के अंदर आपने जो यूज़ किया, जो इंडिकेटर मूड था, इंडिकेटर मूड के अंदर हमने जो है ना वो सवाल, क्वेश्चन, सपोजिशन। और इम्परेटिव मूड के अंदर हमने हुक्म, एडवाइस और एनी इंटीटी। देन कम टू सब्जेक्टिव मूड। सब्जेक्टिव मूड ये होता है जिसमें आप कोई उम्मीद, कोई विश, कोई दुआ, कोई डिज़ायर, कोई फैसला, कोई रेजोल्यूशन अगर ये बताना चाह रहे हैं, दैट विल फॉल इनटू द कैटेगरी ऑफ ए सब्जेक्टिव मूड। फॉर एग्जांपल, लुक एट दैट। फर्स्ट इज इन सब्जेक्टिव मूड अ वर्ब एक्सप्रेसेस अ विश। आप कोई विश बताएं, आ होप या कोई उम्मीद हो, आ डिज़ायर या इंटेंशन, आ रेजोल्यूशन। अब इनकी मिसाल देखें। मे गॉड ब्लेस यू, देखें ये एक विश है, अल्लाह आप पे इनायत फरमाए, अल्लाह आप पे रहम करे। और ये देखें मे को हमने आगे रखा है, गॉड मे ब्लेस यू पॉसिबिलिटी वाला नहीं, मे गॉड ब्लेस यू। ये पिछले दिनों मैंने आपको बताया था कि आप पॉसिबिलिटी, इट मे रेन टुडे, हो सकता है आज बारिश हो, इट के बाद मे आया है, मे को आगे ले जाओ, मे इट रेन टुडे, ये उम्मीद है, इसका मतलब है अल्लाह करे बारिश हो। डॉक्टर मे कम, हो सकता है डॉक्टर आ जाए, मे डॉक्टर कम, अल्लाह करे डॉक्टर आ जाए, दुआ है। दैट्स द डिफरेंस बिटवीन। So this is a present wish. The committee recommended that a weekly inspection to be conducted to assure hygienic conditions in the prison. The committee recommended, committee ने recommendations दी, क्या recommendation दी कि जो ना हफ्तेवार inspection conduct होनी चाहिए ताकि जेल के अंदर hygienic साफ सुथराई conditions, साफ सुथरी conditions बाहर रखने के लिए हफ्तेवार इंस्पेक्शन होनी चाहिए। तो ये क्या, ये एक नाउन क्लाज है जो यूज़ किया हुआ है प्रेजेंट रेजोल्यूशन के तौर पे और इंटेंशंस के तौर पे। वी कॉल इट एज काइंड ऑफ अ प्रेजेंट रेजोल्यूशंस और इंटेंशन। दैट इज आल्सो सब्जेक्टिव मूड। ओके, तो सब्जेक्टिव मूड ऑफ अ वर्ब, इट कुड हैव दिस विश, होप, डिजायर, इंटेंशंस और रेजोल्यूशन, एंड इट कुड यूज दिस टाइप ऑफ अ थिंग। नाउ आई विश आई अटेंडेड द मीटिंग, मेरी ख्वाहिश है कि मैंने मीटिंग अटेंड की होती। अब यहाँ पे कंडीशनल भी यूज़ किया जा सकता था। अब इसने यहाँ पे यूज़ किया कि आई विश आई अटेंडेड द मीटिंग। अच्छा, ये थर्ड कंडीशनल के ज़ुमरे में आते हैं। हम फिर कंडीशन को दोबारा जो स्पेसिफिकली डिस्कस करेंगे, यहाँ पे मैं उसको डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। लेकिन ये जो है ना वो पास्ट विश है जो पूरी नहीं हुई कि मेरी आई विश आई अटेंडेड द मीटिंग, मेरी ख्वाहिश है कि मैंने मीटिंग अटेंड की होती जो नहीं की। इफ़ आई न्यू ड्राइविंग, अगर मुझे ड्राइविंग आती, आई कुड गो टू बीच, तो मैं बीच पे चला जाता।
दिस इज़ अ प्रेजेंट इम्प्रॉबेबिलिटी, ये आपकी एक विश है, एक ख्वाहिश है, लेकिन प्रेजेंट में है। अब आप इफ़ आई न्यू ड्राइविंग, अगर मुझे ड्राइविंग आती, मगर इसका मतलब है नहीं आती, तो दिस इज़ अ प्रेजेंट इम्प्रॉबेबिलिटी। इफ़ आई वर द डॉक्टर, अगर मैं डॉक्टर होता तो आपने 3 मूड पढ़े, इंडिकेटर मूड जिसमें फैक्ट क्वेश्चंस हो, और दूसरा जो इम्परेटिव मूड हो जिसमें कोई सवाल, जिसमें हुक्म हो, किसी चीज़ से मना की गई हो, कोई मशवरा दिया गया हो, और तीसरा जो है आपने पढ़ा सब्जेक्टिव मूड जिसमें कोई उम्मीद, जिसमें विश, कोई होप, कोई डिज़ायर, कोई रेजोल्यूशन, कोई फैसला, इस तरह की चीज़ें हों। दिस थी टाइप ऑफ मूड। अब एक छोटी सी 1 मिनट एक्सरसाइज होगी, आपके सामने कुछ सेंटेंसेस हैं, आपने इनमें से मूड जो है ना उनके ढूंढे, then we will just practice it. Okay, so please try to find this mood, which moods are there, whether they are indicator mood, whether they are subjunctive mood, whether they are imperative mood, that so we could move forward. Okay, please, आपके पास 1 मिनट है, आप इन सेंटेंसेस को पढ़ें और आप इन मूड्स को जो है ना वो समझने की कोशिश करें। अगर फैक्ट है, अगर कोई, तो वो सब जो है ना वो इंडिकेटर मूड है, कोई सवाल है तो इंडिकेटर मूड है, कोई मशवरा है, कोई हुक्म है, कोई इनकार है तो ये इम्परेटिव मूड है, कोई स्टेटमेंट है, कोई विश है, कोई डिज़ायर है, कोई प्रोबेबिलिटी है, दैट इज़ सब्जेक्टिव मूड। Okay, that's great. I hope that you have taken time. Now here's the key of this sentence. Okay. Now look at the first sentence is COVID-19. COVID-19 has killed 836 persons in Pakistan. This is an indicator mood, and actually it is going to show us fact. This basically is a fact. This is a simple fact, and it's going to say this is called indicator mood. Have scientists invented vaccine for COVID-19? That is a simple question. And whenever there is a question, we call it that it is a again indicator mood. Indicator mood के अंदर कोई सवाल, कोई जो है ना वो हकायक,
बताया जाए। ओके, वन शुड यूज़ वंस टाइम प्रॉपरली, ये कौन सा मूड है? इम्परेटिव मूड है। और इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं? दैट इज़ ए काइंड ऑफ एडवाइस। इसके अंदर देखें मशवरा है। अच्छा, इसके अंदर एक चीज़ आप नोट करें कि आई हैव यूज वन शुड यूज़। अक्सर आपने देखा है कि हम ये सेंटेंस लिखते हैं कि यू शुड कम ऑन टाइम, यू शुड रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स। ये यू का हम ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, जो किस हद तक अच्छा नहीं लगता। देखिए, जब आप कहेंगे यू शुड कम ऑन टाइम, इसका मतलब है कि आपको टाइम पे आना चाहिए, कि आप टाइम पे नहीं आते। यू शुड रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, आपको पेरेंट्स की इज़्ज़त करनी चाहिए, तो क्या आप पेरेंट्स की इज़्ज़त नहीं करते? ये बात करने का तरीक़ेकार कोई मयारी या फॉर्मल या थोड़ा, इसको स्टैंडर्ड हम यूँ लिखते हैं कि वन शुड कम ऑन टाइम, इंसान को टाइम पे आना चाहिए। वन शुड रिस्पेक्ट वंस पेरेंट्स, इंसान को अपने वालिदैन की इज़्ज़त करनी चाहिए। ये वन का जो प्रोनाउन का स्ट्रक्चर है, ये उससे ज़्यादा, यू से ज़्यादा अच्छा और ज़्यादा फॉर्मल और ज़्यादा खूबसूरत होता है। और यहाँ पे देखें कि मैं वंस के साथ अपॉस्ट्रोफी लगा रहा हूँ। याद रखें, मैंने बार बार कहा है कि इस वंस के अलावा कोई प्रोनाउन अपॉस्ट्रोफी नहीं उठाता। जब आप एप्लीकेशन लिखते हैं ना, योर्स के ऊपर आप अपॉस्ट्रोफी देते, ये ब्लेंडर है, ये बहुत बड़ा ब्लेंडर है। और इसी तरीके से इट्स वगैरह के ऊपर कभी कभार साथी जो है ना वो दे देते हैं, तो वो भी ब्लेंडर है। जब आप इट्स के ऊपर अपॉस्ट्रोफी देते हैं तो ये इट्स नहीं बनता, वो इट इज़ बन जाता है। वो होता है कि मिसाल के तौर पे इट इज़ अ बस, तो उसी के ऊपर अगर आप अपॉस्ट्रोफी देंगे तो होगा इट्स अ बस। इट्स अ बस मीन्स इट इज़ अ बस। तो इसी तरीके से ये जो यहाँ पे वन शुड यूज़ वंस टाइम प्रॉपरली, दैट्स इम्परेटिव मूड। और ये इम्परेटिव मूड है, इसमें एडवाइस दी गई है। डोंट बैंग द डोर, यह भी इम्परेटिव मूड है, इसमें ऑर्डर दिया गया है। शट द डोर, फेच मी अ ग्लास ऑफ वाटर, डोंट बैंग द डोर, दरवाजे को ना बंद करो। बैंग होता है ज़ोर से दरवाज़ा बंद करना। अक्सर आपने देखा है कि कभी कभार तो इत्तफाकन भी होता है। और दूसरी बात, अक्सर एक बात नोट करें, ज़िंदगी में याद रखिएगा, प्लीज़ डोंट बैंग डोर आफ्टर यू। अक्सर लोग जब आप गुस्से में होते हो, कहीं से नाराज़ होकर उठते हो, निकलते हो, तो आप ज़ोर से दरवाज़ा बंद करते हो। देखो, ये बहुत गलत बात है। कुछ भी हो, लेकिन याद रखो, अपने पीछे कभी भी ज़िंदगी में दरवाज़ा नहीं बजाना। भले आप कितने भी गुस्से से उठकर चले जाएं, लेकिन आप ज़ोर से दरवाज़ा बंद करके मत जाइएगा। डोंट बैंग डोर आफ्टर यू। आफ्टर यू मीन्स आपके जाते हुए या पीछे, दैट इज़ नॉट इज़ द लेवल ऑफ ह्यूमैनिटी। सो डोंट बैंग द डोर, दैट्स इम्परेटिव। 4 ये भी इम्परेटिव मूड है, और इसी के अंदर भी जो है ऑर्डर यूज़ हुआ है। मे शी गेट वेल सून, अल्लाह करे वो जल्दी सेहतियाब हो जाए, ये प्रेजेंट विश है। मे शी गेट वेल सून, मे को हमने आगे रखा है, आखिर में एक्सक्लेमेशन साइन है। दैट्स अ सब्जेक्टिव मूड, प्रेजेंट विश। ओके, इफ़ आई वर द प्राइम मिनिस्टर आई वुड हैव प्रायोरिटाइज्ड एकेडमिक एंड इकोनॉमिक अपलिफ्ट्स। अगर मैं प्राइम मिनिस्टर होता तो मैं जो है ना वो तालीमी और मुआशी जो है ना चीज़ों को करता, अपलिफ्ट होके उसी की तरक्की या उसी की बेहतरी के लिए जो है ना काम करता। माफ़ कीजिएगा, ये हमारा एक जो है ना अभी एक कौमी जो है वो जोक भी हो गया है कि जो भी आता है वो कहता यही है, फिर करता इसके बरक्स है। लेकिन जो है ना वो बेसिकली दिस इज़ इफ़ आई वर द प्राइम मिनिस्टर, अगर मैं प्राइम मिनिस्टर होता। अब चूँकि ये है नहीं, दिस इज कॉल्ड प्रेजेंट प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी मीन्स मुमकिनात, इम्कानात। तो ये प्रेजेंट प्रोबेबिलिटी है जो अभी हो तो नहीं सकती, वजह से कि अगर मैं ऐसा होता, अगर ऐसा हो जाता, आई वुड हैव प्रायोरिटाइज, तो मैं किस चीज़ को तरजीह देता? एकेडमिक, 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 एकेडमिक एंड इकोनॉमिक अपलिफ्ट्स। ये इकोनॉमिक मैंने आपसे पिछले दिनों बताया था। अच्छा, इकोनॉमी का जो एडजेक्टिव होता है वो इकोनॉमिक होता है। अच्छा, इकोनॉमिकल नहीं होता। अगर इसके साथ आप ए लगाकर इकोनॉमिकल बनाओगे तो इकोनॉमिकल का मतलब होता है कि जो चीज़ सस्ती हो, कम खर्च हो तो हम यूज़ करते हैं। या वो बंदे भी इकोनॉमिकल होते हैं जो फजूल खर्च नहीं करते, वी कॉल ही इज़ अ वेरी इकोनॉमिकल पर्सन। तो इकोनॉमिकल और इकोनॉमिक, यू मस्ट अंडरस्टैंड देयर डिफरेंस। दिस इज़ अ सब्जेक्टिव मूड, present probability. It was decided that every student would wear a mask. ये तय हुआ था कि हर स्टूडेंट्स मास्क पहनेगा। दिस इज़ अ रेजोल्यूशन और इंटेंशन, एक फैसला हुआ था, एक रेजोल्यूशन हुई थी। तो इट वाज डिसाइडेड दैट एवरी स्टूडेंट्स वुड वेयर ए मास्क। ये जो है ना दैट शोज ए रेजोल्यूशन। ओके, अगर इसको हम देखें तो ये दैट इज़ ए काइंड ऑफ ए रेजोल्यूशन, और दिस विल बी कॉल्ड एज ए
दिस इज़ ए टाइप ऑफ रेजोल्यूशन। तो ये जो है हम जो है ना वो वर्ब को देखते हैं कि हाउ दिस वर्ब इज़ यूज। तो आज की क्लास में हमने ये देखा कि व्हाट्स इंटेंसिव वर्ब एंड एक्सटेंसिव वर्ब, देन व्हाट्स द डायनामिक वर्ब एंड व्हाट इज़ स्टेटिव वर्ब, फिर वर्ब्स के मूड्स पढ़े, और अभी जो है ना वो वर्ब को और आगे जाते हैं। तो फिर वर्ब में ये जो मैंने आपको बताए थे इन्फिनिटिव हो गए या बेयर इन्फिनिटिव हो गए या स्प्लिट इन्फिनिटिव हो गए, इनका हम कैसे इस्तेमाल करते हैं, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। थोड़ा इसको डिस्कस करते हैं, अगर रह गया तो वी विल आल्सो जस्ट शिफ्ट इट टू द नेक्स्ट क्लास। वर्ब हमारा बहुत की एरिया है, इसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, बहुत से एरियाज़ को एक्सप्लोर करना पड़ेगा वर्ब को समझने के लिए और वर्ब की इस एरियाज़ को क्लियर करने के लिए। सो आई थिंक दैट वी नीड 2 or 3 classes for this, but don't worry, we will cover every aspect so that you would be familiar from each level of this verb uses and it is actual role in the language. अब इन्फिनेटिव के तौर पे जब आप वर्ब को यूज़ करते हैं, द इन्फिनेटिव इज़ ए वर्ब नाउन, बेसिकली ये नाउन के तौर पे काम करते हैं। देखें ना, गलती करना, टू एरर इज़ ह्यूमन, ख़ता करना इंसान का जो है ना का काम है, टू एरर इज़ ह्यूमन। अब टू राइट एसे इज़ नॉट अ सिंपल, टू राइट एसे लिखना आसान काम नहीं है। तो ऐसे लिखना एक काम है, देखिए ना, ये वर्ब नहीं है डायरेक्ट जो है ना, एक काम के तौर पे वर्बल नाउन है, ये वर्ब्स नाउन है। जिस तरीके से मैंने आपको बताया था ना कि वो जो प्रेजेंट पार्टिसिपल से भी वर्ब नाउन बनते थे ना, जिस तरह के राइटिंग जो जेरे नाउन मैंने आपको बताए थे, तो ये जो है वो वर्ब नाउन है। ये वर्ब नाउन 3 चीज़ों से बन सकते हैं। इन्फिनेटिव से भी वर्ब नाउन बन सकता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल इंग से भी वर्ब नाउन बन सकता है, और पास्ट पार्टिसिपल ईडी से भी वर्ब नाउन बन सकता है। इन्फिनेटिव से, प्रेजेंट पार्टिसिपल से और पास्ट जर्नल से, जो पास्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, इन तीनों से जो है ना हम वर्ब नाउन बना सकते हैं। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इनके जो है ना वो किस तरीके से वी जस्ट यूज देम। ये पहला जो है ना वो टू एयर, दे लव टू ड्राइव इन रेन, बारिश में गाड़ी चलाना, टू ड्राइव। ओके, अब देखिए, टू लर्न इंग्लिश इज़ नॉट डिफ़िकल्ट, अंग्रेज़ी सीखना। अब इस सेंटेंस के अंदर देखें, ये टू लर्न, ये क्या बन रहा है, ये जो है ना यहाँ पे सब्जेक्ट के तौर पे काम कर रहा है। अंग्रेज़ी सीखना मुश्किल नहीं है। आई विश टू हेल्प पुअर, मैं क्या चाहता हूँ, आई विश, मेरी ख्वाहिश क्या है, विश क्या है, टू हेल्प पुअर, टू हेल्प। ये जो टू हेल्प है, ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट ऑफ ट्रांजिटिव वर्ब बना है। ये जो विश तो है, लेकिन विश क्या है, टू हेल्प पुअर जो ना, तो ये उसका जो है ना वो ऑब्जेक्ट बना है, किसका, ट्रांजिटिव वर्ब का, जिसको हमने यहाँ पे विश लगाया है जो है ना वो टू हेल्प पुअर के लिए। तो दैट इज़ बिकम ए काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट, आई विश टू हेल्प पुअर। या her earnest wish is to become a successful doctor, उसकी जो देरीना ख्वाहिश, earnest means देरीना, wish is क्या है, उसकी ख्वाहिश क्या है। अब देखिए ये कॉम्प्लीमेंट के तौर पे, her earnest wish is to become a successful doctor। अब एक कामयाब डॉक्टर बनना, to become a successful doctor, इसमें जो to become है, ये जो है ना वो एक कामयाब जो है ना बनना, टू बिकम अ सक्सेसफुल डॉक्टर, कामयाब बनना, दैट इज़ काइंड ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट। या वी फाउंड हर ओपन द डोर, ऑब्जेक्ट ओके, वी फाउंड टू ओपन द ऑब्जेक्ट ओके, हर ओपन द डोर, ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीट, हमने क्या पाया उसको, वी फाउंड हर, हमने उसको पाया, क्या पाया, ओपन द डोर, दिस इज ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ये ऑब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट करा है, ऑब्जेक्ट को कंप्लीट करा है। वी फाउंड हर ओपन द डोर, वी फाउंड हर ओपन द डोर, दैट्स ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। आई वॉन्ट टू सबमिट माई विश, मैं अपनी ख्वाहिश जो है ना वो सबमिट करना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू सबमिट माई विल, क्वालिफाइंग द वर्ब शोइंग पर्पस। अब यहाँ पे जो ना जो टू सबमिट है, ये जो इन्फिनेटिव यूज़ हुआ है, ये क्या कर रहा है, ये इस वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है।
और इसका मतलब बता रहा है कि शोइंग द पर्पस मतलब क्या है, आप क्या चाहते हो। आई वॉन्ट टू सबमिट माई विल, मैं अपनी वसीयत सबमिट करना चाहता हूँ। शी इज़ वेरी हैप्पी टू सिक्योर द फर्स्ट पोजीशन, शी इज़ वेरी हैप्पी टू सिक्योर द फर्स्ट पोजीशन। क्वालिफाइंग एन एडजेक्टिव, वो खुश तो है, शी इज़ वेरी हैप्पी, हैप्पी एडजेक्टिव है ना, अब इसको क्वालिफाई करें, क्यों हैप्पी है, टू सिक्योर द फर्स्ट पोजीशन, पहली पोजीशन हासिल करके वो बहुत खुश है। सो ये जो खुश होना इसको क्वालिफाई करा है, इस एडजेक्टिव को क्वालिफाई करा है, टू सिक्योर द फर्स्ट पोजीशन, टू सिक्योर द पहली पोजीशन हासिल करके वो बहुत खुश है। हियर इज गोइंग टू क्वालिफाई दिस एडजेक्टिव। इट्स इज टाइम टू गो, इट इज़ अ टाइम, अब ये वक्त है कि हम जाएं, इट्स टाइम टू गो। हियर टू गो that's going to qualify this time, it is time to go। तो अब देखिए कि ये इन्फिनिटिव जो है वो किस तरीके से जो है ना वो यूज़ होता है, किस तरह सब्जेक्ट को क्वालिफाई करता है, ऑब्जेक्ट को क्वालिफाई करता है, या एडजेक्टिव को सेंटेंस में क्वालिफाई करता है, या नाउन को क्वालिफाई करता है और उसके मतलब को क्लियर करता है। तो ये जो बेसिक लेवल पे ना हम वो वर्ब की डेफिनेशन पढ़ा देते हैं, जब आगे हम लैंग्वेज की स्ट्रक्चर्स में जाते हैं ना तो स्ट्रक्चर्स में ये चीज़ें इस तरह काम नहीं करती। अब ये वो वर्ब हैं जिनके साथ आपने हमेशा टू लगाना होता है, द वर्ब प्लस इन्फिनिटिव विद टू, इनके साथ हमेशा आपको टू लगाना पड़ेगा। फॉर इंस्टेंस वांट, आई वांट टू प्ले, वांट के साथ बाद हमेशा आपको टू लगाना पड़ेगा। इट इज़ नेसेसरी टू गो, नेसेसरी टू। अक्सर जो आप जॉब वगैरह में टेस्ट देते हैं या मेडिकल की या इंजीनियरिंग की एंट्री टेस्ट आते हैं तो इस तरह के सवाल होते हैं इसमें जो ना। अब देखिए ये वो वर्ब है जिसमें आपको हमेशा टू लगाना पड़ेगा, कि जब आप यूज़ करते हैं कि आई वांट टू प्ले, इट्स नेसेसरी टू गो, शी आट टू वेट, आई एग्री टू राइट, दे डेयर टू एंटर, शी डिसाइडेड टू प्ले, ही एक्सपेक्टेड टू कम, ही फेल्ड टू फुलफिल द अपॉइंटमेंट, he happened to come across the new system, he hoped to wait, he hoped to play। तो ये वो वर्ब है ना जिनके साथ आपको टू लगाना पड़ेगा। prepare to, pretend to, pretend का मतलब ये होता है कि आप जो है ना वो बहाना बनाएंगे जिस तरीके हकीकत ना हो बट लेकिन बना ऐसा करे। तो इन्फिनिटिव ऑफ पर्पस, she sat down to rest, देखें वो आराम करने के लिए बैठी। In order to wait, आप ये भी कह सकते हैं, she said in order to rest, she said, so as to sit, it is nice to sitting here। अच्छा एक बात नोट करें, जब भी सेंटेंस के अंदर प्रेपोजिशन आ जाए उसके बाद अगर वर्ब आएगा तो फिर वर्ब को फोर्थ फॉर्म लगेगी, इंग फॉर्म लगेगी, ये रूल है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, जब भी वर्ब में जब भी जो है ना वो जो ना आ जाए, प्रेपोजिशन आ जाए, प्रेपोजिशन के बाद अगर आप वर्ब यूज़ करें तो फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगेगी। जिस तरह नाइस ट आ गया ना, तो अब नाइस टू, ये ट किसको क्वालिफाई करा है, नाइस एडजेक्टिव को। अब नाइस एडजेक्टिव के बाद ये फिक्स प्रेपोजिशन आता है, तो जब ये ट आ गया ना तो अभी हमें वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगानी पड़ेगी। एक बहुत कॉमन सेंटेंस यूज़ होता है, आई वी लुक फॉरवर्ड टू। अब जब लुक फॉरवर्ड टू आपने लगा दिया है ना, अब अगर आप वर्ब लगा रहे हो ना तो आप ये नहीं लगाएंगे कि वी लुक फॉरवर्ड टू वेलकम यू। अब आपको कहना चाहिए वी लुक फॉरवर्ड टू वेलकमिंग यू, वी लुक फॉरवर्ड टू। ये एक जो है ना वो इडियम है, इसका मतलब ये होता है कि हम उम्मीद करते हैं, हम जो है ना वो ख्वाहिशमंद हैं, तो हम आरजूमंद है तो हम ये लगाते हैं, हम आपको वेलकम करने के आरजूमंद है। वी लुक फॉरवर्ड टू वेलकमिंग यू, वी लुक फॉरवर्ड टू मीटिंग यू, मीटिंग नॉट मीट, नॉट वेलकम। इसमें आप बेयर इन्फिनिटिव नहीं लगा सकते, आपको यहाँ पे हमेशा जो है ना वो प्रेजेंट पार्टिसिपल इंग फॉर्म वर्ब की लगानी पड़ेगी। आई एम ग्लेड टू हैव सीन हर, ओके, टू हैव सीन हर। शी लाइक्स टू बी लाइक्ड, she likes to be liked, okay, try not to be late, I'm sorry not to have phone। तो इसी तरीके से देखें यहाँ पे आप जो है वो
टू बी जो ना आई लाइक्स टू बी लाइक्ड, टू हैव, इस सेंस के अंदर वी यूज दिस। अब ये वो वर्ब, ऑब्जेक्ट एंड इन्फिनेटिव, ये वो हैं जिसमें आप जो है ना वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट रखकर फिर जो है ना वो वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट के बाद इन्फिनेटिव। ही वांट्स मी टू वॉश हिज शॉक्स, सब्जेक्ट ही है, वांट वर्ब है, वांट के बाद क्या आया है, ऑब्जेक्ट आया है। क्या चाहता है, मी, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से क्या चाहता है, जो है ना वो वॉश, ओके, इन्फिनेटिव। तो ही वांट्स मी टू वॉश हिज शॉक्स। आई वुड प्रेफर यू टू पे नाउ, आई वुड प्रेफर यू टू पे नाउ। तो ये वो स्ट्रक्चर है जिसमें ऑब्जेक्ट के बाद जो है ना हमें इन्फिनेटिव लगाना होता है। दूसरे ये वो वर्ड हैं जिनमें आप देखेंगे आपको जो है ना वो इन्फिनेटिव लगाना होता है। एडवाइज है, अलो है, आस्क है, कांट बेयर, कॉज है, इनकरेज है, एक्सपेक्ट है, फोरबिड, फोर्स, गेट, हेल्प, इनवाइट, लीव, मीन। तो ये वो वर्ड है जिसमें आप यूज़ करते हैं एडजेक्टिव फॉलोड बाय इन्फिनेटिव। ये वो एडजेक्टिव्स हैं जिनके बाद आपको जो है इन्फिनेटिव यूज़ करना होता है। अफ्रेड, एंक्शस, सर्टेन, मुझे यकीन है, ग्लेड, हैप्पी। सो दीज आर दोज एडजेक्टिव्स जिसके बाद आपको इन्फिनेटिव यूज़ करना पड़ता है। सपोज आई एम सॉरी टू डिस्टर्ब यू, सॉरी एडजेक्टिव है। आई एम हैप्पी टू वेलकम यू, अगर मैं कहूँ ना आई एम हैप्पी, हैप्पी एडजेक्टिव है ना, टू वेलकम यू। शी इज़ प्लीज टू सी यू, अब देखिए ये प्लीज एडजेक्टिव है, वो खुश है। और अब नीचे कुछ ऐसे एडजेक्टिव हैं जो इसको नहीं फॉलो करते, लाइक दिस, इंटेलिजेंट, लेजी। लेजी के बाद आप इन्फिनेटिव नहीं यूज़ कर सकते। आप ये नहीं कह सकते ही इज़ लेजी टू वॉक, नो, या ही इज़ इंटेलिजेंट टू प्ले, नो। वी डोंट यूज दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स। इनके बाद जो है हम इन्फिनेटिव्स जो है नहीं यूज़ करते। ये वो वर्ड है जो दे आर फॉल इनटू द कैटेगरी ऑफ बेयर इन्फिनेटिव। इनके साथ कभी भी आप टू नहीं लगा सकते। ये जो ना फ्रेजेस या प्रीपोजिशंस आर जनरली फॉलोज बेयर इन्फिनेटिव। bid, let, hear, watch, make, need, see, help, dare, shall, may, do, should, might, must, will, can, must, it's repeated, sorry, can, must, are, that, would, are, could, are, had, better, sooner than, had, rather than, would, rather. These are the areas, इसमें आप जो है वो to नहीं लगाएंगे। I can wait होगा, I can't wait नहीं होगा। You must go होगा, you must to go नहीं होगा। देखें, we bade him go, not to go. I dared not speak with the principal, यहाँ पे आप to ना लगाएं। He does nothing except play cricket, play cards, except. You had better consult the doctor, not to consult the doctor. I can't wait further, मैं further wait नहीं कर सकता, like this. ओके, अब इनके अंदर जो है ना यू डोंट नीड लाइक दिस, ओके, आई कांट वेट फर्दर। इनमें आप कभी भी जो है ना वो नहीं तो नहीं लगाएंगे। दे मे गो, ओके, ही मे कम, ही मे कम। और देखिए यहाँ पे टू कम नहीं लगा सकते। She can play, इसमें टू प्ले नहीं लगा सकते। ये वो हैं जिनमें आप टू नहीं लगा सकते। स्प्लिट इन्फिनेटिव वो इन्फिनेटिव होते हैं जिसमें हम वर्ब को जो है ना वो तोड़कर उसके दरमियान जो है ना प्रीपोजिशन एडवर्ब रख करके फिर जो रखते हैं, दिस कॉल्ड स्प्लिट इन्फिनेटिव। किस हद तक स्टैंडर्ड अंग्रेज़ी में इसको गलत भी समझा जाता है, लेकिन बहुत सी लैंग्वेज में सिचुएशन में ये स्प्लिट इन्फिनेटिव यूज़ किए जाते हैं। शी ऑलवेज yearned to immediately break the news. yearn to break, इन्फिनेटिव क्या है, to break। दरमियान में क्या खड़ा है, दरमियान में एडवर्ब डाल दिया गया immediately। और immediately को ये जो इन्फिनेटिव था to break,
इसको तोड़कर, स्प्लिट करके तोड़कर उसके दरमियान क्या रखा गया, एडवर्ब रखा गया। That is called just split infinitive. I think we should stop here, and we should give some time to semantics and phonetics, because we have given too much time to semantics, and then the next class we would shift towards verb, these remaining part of the verb, and we will connect it like this. So well, now you saw that this area is really rigorous when we are going to talk about verb, especially intensive verb, extensive verb, stative verbs, dynamic verb, then the mood of verbs, where we use indicative moods, where we use imperative moods, where we use subjunctive moods. Then this particular area of verb noun, how can we make noun out of verb, may to be infinitive with the help of to, or may to be with the help of a past tense, or may to be with the help of a fourth form, ing form. We can make this verb noun, and how they are used. And the certain verbs, they are followed by bare infinitive, and the verbs which are followed by infinitive. Now see, necessary is always followed by infinitive. It is necessary to wait. अब आप यहाँ पे ये नहीं कह सकते कि it is necessary wait, no. और कुछ जो वर्ब हैं जहाँ पे आप to नहीं लगा सकते, आपको bare infinitive लगाना है, वर्ब होगा लेकिन उसके आगे to नहीं होगा. She can write. अब हम यहाँ पे ये नहीं कह सकते she can't write. To write is infinitive. So we have to use bare infinitive. So I gave you appropriate list of the words where you can use infinitive, where you can't use bare infinitive. It will give you a bit authoritative sense. But for that, okay, on your part, you need practice is also necessary. And first you understand them, how they are being used, and then you should practice in your language. This will give you a bit of confidence, and it will also change of your language. Okay. So thank you very much. Now let's go to your listening session. It's time for semantics. Syntax is over. I believe that it's a bit of boring area, but we are trying to make something simple for you from semantics, syntax as well. But the most interesting area is always semantics and phonetics, and these all areas are a bit interesting. So let us switch to that area as well. Thank you.
Now that's really inspiring story about this baby. What she does. Look, what is the attitude? That matters a lot in your life. Okay, the way you look at the things, that matters a lot. Respecting others. Once upon a time, there lived a girl who got married into a family. एक लड़की रहती थी जिसकी एक ख़ानदान में शादी हुई. Where she had to face a tough mother-in-law. She had to face. अब देखिए यहाँ पे हम इन्फिनेटिव लगा रहे हैं, to face. She had to face. ये to face जो है इन्फिनेटिव है, जो किसको जो है ना क्वालिफाई कर रहा है, had को, उसको उस वर्क को जो है ना वो कर रहा है. She had to face. उसको क्या करना पड़ा? A tough mother to face a tough mother-in-law. एक टफ जो है ना मदर लॉ को फेस करना पड़ा. They used to would argue. देखिए पिछली क्लास में मैंने आपको मॉडल वर्ब पढ़ाए थे, जिसमें मैंने बताया था कि यूज़ टू हम लगाते कोई भी काम जो हम माजी में करते थे और अभी हमने छोड़ दिया. चूँकि ये माजी की हम बात बता रहे हैं उसका किस्से में, तो वो आपस में आर्ग्यू किया करते थे, बहस किया करते थे. तो ये माजी की रूटीन है जो अब नहीं है. तो उस सेंस में हमने यहाँ पे यूज़ टू का सारा लगाया. और मैंने आपको बताया था अमेरिकन इंग्लिश के अंदर वी यूज़ वुड. They used to would argue, quarrel and fall into routine bickering. और वो अक्सर आपस में बहस किया करते थे, उसके क्वारल होता था. क्वारल यही जो घरों में चपकलिश होती है. fall into routine bickerings. बिकरिंग भी हम इसे कहते हैं. स्कैबल्स जो घरों में आम तौर पे जो चपकलिश होती है बहन भाइयों के दरमियान जो चलता रहता है, छोटे मोटे जो आप समझते हैं कि घरों के अंदर जो चपकलिश होती है बहनों के दरमियान, भाइयों के दरमियान और सास और बहू के दरमियान, और छोटी छोटी चीज़ें, वी कॉल इट बिकरिंग्स और स्कैबल्स. So they used to argue, quarrel and fall into routine bickerings and squabbles. Their life was full of distress. उसकी जो ज़िंदगी थी ना वो एक डिस्ट्रेस होता है, परेशानी, दबाव, टेंशन, स्ट्रेस एंड अपहीवल. अपहीवल क्या होता है ज़िंदगी में? जब मुख्तलिफ चेंजेस आते हैं, रोज़ कोई ना कोई झटका, रोज़ कोई ना कोई अपहीवल. बेसिकली होता है कि बहुत बड़ा झटका या बहुत बड़ी कोई तब्दीली. सो देयर लाइफ वाज फुल ऑफ दीज jerks and jolts and stress and tensions and stress. She went to her father's friend. ये नाउन का जेनेटिव केस है, यहाँ पे पोजीशन जाहिर करा है, उसके पापा का दोस्त, father's friend. She went to her father's friend to get poisonous herb. अब देखिए poisonous यहाँ पे एडजेक्टिव है और किसके बारे में बता रहे हैं? herb नाउन के बारे में बता रहे हैं. To get हम इन्फिनेटिव यूज़ करें. वो अपने पापा के दोस्त के पास गई. क्यों गई? To get poisonous herbs, ताकि जहरीली जड़ी बूटियाँ जो होती हैं, we call them herbs and shrubs, ताकि उस हकीम से, उसके पापा के दोस्त हकीम से जहरीली जो है ना वो जड़ी बूटियाँ ले आए. to kill her, ताकि इस अपनी मदर इन लॉ को मार दे. The person gave her some herbs. उसके जो है ना वो शख्स ने इसको कुछ herbs दी, कुछ जड़ी बूटियाँ दी. with a suggestion. अच्छा, इसे सजेशन ना कहें. जिस तरह आप कहते हैं ना क्वेश्चन, तो इसे भी पढ़ा करें सजेशन. दिस इज सजेशन, नॉट सजेशन. डोंट प्रोनाउंस इट शन. विद अ सजेशन दैट शी वुड बी काइंड, पोलाइट एंड केयरफुल टू हर. उसने उसको दवाई दी, बल्कि एक मशवरा दिया कि शी वुड बी काइंड. काइंड एडजेक्टिव है, पोलाइट एडजेक्टिव है, एंड केयरफुल टू हर. यहाँ पे देखिए जो है ना हम लगा रहे हैं केयरफुल के साथ एज ए फिक्स प्रीपोजिशन, कि वो उसके साथ बहुत बड़ी मेहरबान होगी, बड़ी काइंड, बड़ी पोलाइट, बड़ी केयरफुल होगी अपनी सास के साथ. to her so that none could suspect her when she would die. ताकि कोई भी जो है ना ये शक ना करे, सस्पेक्ट करना. so that one could not suspect. okay, ताकि none could suspect, ताकि कोई भी शक ना कर सके जब उसकी डेथ हो जाए. तो इसके लिए लाजिम हो कि ये उसके साथ इतनी मेहरबान हो, इतनी उसकी जो है ना वो केयरिंग हो, ख्याल रखने वाली हो, ताकि आम बंदों को पता चले कि ये सास का बहुत ज़्यादा ख्याल रखती है. केयरिंग एंड पोलाइट एंड केयरफुल, सो दैट नन कुड सस्पेक्ट, ताकि कोई भी शक न कर सके व्हेन शी वुड डाई, जब वो मरेगी. अब यहाँ पे मैं वुड क्यों लगा रहा हूँ? देखिए उसने माजी में हकीम ने कहा था कि जब वो मरेगी. अब चूँकि हम अभी कहानी बता रहे हैं तो उस विल को इस यहाँ पे अभी हम रेफ़र करें एज ए वुड व्हेन शी वुड डाई.
शी फॉलोड द इंस्ट्रक्शन, उसने उन तमाम हिदायत पे अमल किया। पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, शी फॉलोड द इंस्ट्रक्शन। फॉलो वर्ब है, सेकंड फॉर्म यूज़ हो रहा है, माजी है, इंस्ट्रक्शन नाउन है। टू लेटर एंड स्पिरिट, ये इडियम है। टू लेटर एंड स्पिरिट का मतलब है कि बिल्कुल जो है ना वो जूं का तूं, या उसी को शद मद के साथ किसी चीज़ को हम फॉलो करते हैं, हम कहते हैं इस कानून को विद लेटर एंड स्पिरिट माना जाएगा। तो लेटर एंड स्पिरिट का इडियम है, उसका मतलब ये है कि उसी के हर्फ ब हर्फ या उसी के हर एक जुज़ को बिल्कुल मनो अन उसको माना जाएगा। दैट विल वाज वी कॉल इन इंग्लिश एज ए लेटर एंड स्पिरिट। विद इन अ फ्यू मंथ्स, अब देखिए यहाँ पे मैं फ्यू नहीं लगा रहा हूँ, याद रखें ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। मैंने आपको बताया था फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल। यहाँ पे मंथ्स है, जो है ना वो काउंटेबल नाउन प्लूरल है, तो मैं फ्यू लगा रहा हूँ। अगर अनकाउंटेबल नाउन होता ना तो फिर मैं लिटिल लगाता। अ फ्यू मंथ्स, कुछ हफ्तों के, महीनों के बाद, दे बिकेम काइंड टू ईच अदर। अब देखिए यहाँ पे मैंने आपको प्रेपोजिशन बताया था, रेसिप्रोकल प्रोनाउन है। रेसिप्रोकल प्रोनाउन वो होते हैं जो दो जो है ना वो को रेसिप्रोकेट करते हैं। अब यहाँ पे सास और बहू है तो हम ईच अदर लगा रहे हैं। अगर इससे ज़्यादा लोग होते हैं ना, दो से, तो फिर हम वन एन अदर लगाते हैं। वी रिस्पेक्ट वन एन अदर, असलम एंड अली रिस्पेक्ट ईच अदर, दो के लिए ईच अदर, दो से ज़्यादा वन अदर। सो बिकम काइंड। अच्छा, अभी जब हमें यही तरीक़ेकार होता है रीडिंग का, जब हमें अंग्रेज़ी में भी पढ़ना था ना, जब आप अंग्रेज़ी के सबक वगैरह, लेसन वगैरह स्कूल्स में पढ़ते हो ना, तो वहाँ पे रीडिंग को इस तरीके से हमें ब्रेक करना है। ग्रामर को यहाँ पे हमने डिस्कस करना होता है कि ये कैसे काम करें। आप उसको थेमेटिक पे एक मरतबा पढ़ें, फिर उसी को एक मरतबा आप ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ें, फिर उसी को आप वर्ब पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ें, फिर उसी सब्जेक्ट को आप एडजेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ें, फिर उसी सब्जेक्ट को आप जो है ना वो अपना टेंस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ें। इस तरह अगर हमारे स्कूल्स में ये लैंग्वेजेस के सब्जेक्ट्स या अंग्रेज़ी पढ़ाई जाए ना, तो यू वुड बी वेरी परफेक्ट एंड यू विल इम्प्रूव अ लॉट। एंड दिस हमने क्या किया, हमने ग्रामर को जब हम सेंटेंस में पढ़ रहे हैं, किताबों में पढ़ रहे हैं, तो वहाँ पे हम ग्रामर को डिस्कस ही नहीं कर रहे, तो बच्चों को अंदाज़ा ही नहीं हो रहा है कि यहाँ पे अ फ्यू क्यों आ रहा है। यही फंक्शनल ग्रामर का रोल है कि इसे फंक्शन कराना कि यहाँ पे ये क्या फंक्शन कर रहा है, इसका क्या मकसद है, ये क्यों ऐसे काम कर रहा है। दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ लैंग्वेज। सो अ फ्यू मंथ्स दे बिकेम काइंड टू ईच अदर। शी वेंट बैक टू द हर्ब सेलर, वो दोबारा उस तबीब के पास गई, टू सेव हर, but came to know that there was no poison in the herbs but it was in her mind। तो उसने उसको क्या बताया कि मैंने तो सिंपल आपको कुछ जो न्यूट्रिएंट्स हैं और कुछ सप्लीमेंट्स दिए थे और उसमें कोई जहर नहीं दिया था। जहर तो असल में आपके दिमाग में था, जब उधर से निकल गया तो जो है उसमें एक्चुअली दैट इज़ ऑल अबाउट द एटीट्यूड। मैं हमेशा कहता हूँ कि आप जो भी लड़के हो, घर से बाहर ऐरे गैरे एक लड़के के 1000 नखरे बर्दाश्त करते हो, उसको अपना दोस्त बनाते हो, यही अगर आप इज़्ज़त अपने छोटे भाई को दो तो वो आपका सबसे ज़्यादा बेहतरीन दोस्त बन सकता है। यही हाल लड़कियों का होता है, वो बाहर एक लड़की के 1000 नखरे बर्दाश्त करेंगी, लेकिन घर में बैठी हुई छोटी बहन की अगर इज़्ज़त दी होती तो उस बाहर वाली लड़की से वो आपकी सबसे बेहतरीन सखी, फ्रेंड, दोस्त बन सकती है। एक्चुअली दैट इज़ ऑल अबाउट रिस्पेक्ट। जो ज़िंदगी के इश्यूज़ होते हैं वो देर आर बेस्ड ऑन रिस्पेक्ट। बहुत से लोग हैं किनके आपको बाल पसंद नहीं होते हैं, किनका आपको लिबास पसंद नहीं है, किनके कद से आपको प्रॉब्लम है, किसी के होंठों से प्रॉब्लम है, किसी के दांतों से प्रॉब्लम है, किसी के बालों से प्रॉब्लम है। लेकिन मैं आपको ईमानदार से बता दूँ, ये सब कुछ कोई प्रॉब्लम नहीं है। असल प्रॉब्लम ये है कि वो लोग आपकी इज़्ज़त नहीं करते, आप उनकी इज़्ज़त नहीं करते। यही लोग जब आपको रिस्पेक्ट करना शुरू कर दें, आपको कदर की निगाह से देखना शुरू कर दें, तो वो आप उनके फ़ैन होते हैं, वो आपके फ़ैन होते हैं, आप उनके हीरोज़ होते हैं, वो आपके हीरोज़ होते हैं। ये सब जो मामला है दैट्स ओनली वन वर्ड पे चलता है, रिस्पेक्ट के साथ। जब आप रिस्पेक्ट जो है ना वो रखोगे तो बहुत मैटर करती है। आप हैरान हो जाएंगे कि अगर ABCD को हम नंबर दें, A को आप 1 नंबर दें, B को 2 नंबर दें और C को 3 नंबर दें, इस तरह जो है ना वो Z को आप 26 नंबर दें, और फिर आप जो अल्फाज हैं, अगर इन अल्फाज को आप जाकर लिखें और इनके नंबर्स काउंट करें तो आप हैरान हो जाएंगे कि जब आप एटीट्यूड को लिखेंगे तो इसके नंबर को आप काउंट करेंगे तो इसका टोटल जो है ना जाकर बनेगा वो 100% बनता है। और ज़िंदगी में मोहब्बत, प्यार, ये वो सब चीज़ें लोग कहते हैं कि मोहब्बत में ज़्यादा ताकत होती है, प्यार में ज़्यादा ताकत होती है, सब चीज़ें, लेकिन मेरी नज़र में इन सबसे ज़्यादा
दैट्स जो एटीट्यूड होता है, एटीट्यूड बड़ा मैटर करता है, क्योंकि मोहब्बत, प्यार, ये सब चीज़ें आपकी सिलेक्टेड चंद लोगों के साथ मुंसलिक होती हैं। हर बंदे के साथ लव मोहब्बत का रिश्ता नहीं होता, लेकिन एटीट्यूड एक वाहिद रिश्ता है जो आपका हर बंदे के साथ होता है। दैट चेंज योर लाइफ, दैट्स रियली ब्यूटीफुल. This is how you get change in your life, and you get a very positivity in this thing. So in this story, from this story about this daughter-in-law and a mother-in-law, actually daughter is she's a type of egoist girl, and they always fall into bickering. There's always unnecessary argument, and every day there's a quarrel, routine things, and there's a stress, there's a distress. They are living a life of pain and life full of tension and distress, without a peace of mind, and they are planning to kill each other. That's really injurious when you plan somebody to kill psychologically or even intellectually. That is a blunderous part of human life when we intend. ज़िंदगी में सबसे मुश्किल लम्हा ये होता है जब आप किसी के लिए सोचें कि अगले बंदे को मार दूं या वो मर जाए. So this is the worst part of that thing. So this is what we covered in our previous class. This was a clip we covered today. In the previous class we covered another speech. Okay, I would repeat this thing in speech, and this speech is really important in a sense that when you are here, okay, this is about the defense secretary, under secretary, who went to a conference. जो conference में जाता है, and he was given business ticket. इसको business ticket मिली. He was driven to the hotel. Somebody was there at the airport. Airport पे कोई उसको wait कर रहा था उसको receive करने के लिए. Then he went to the hotel. Again he was drove to hotel. उसको hotel में ले गया, and he was shown his room. उसको कमरे तक लाया गया. And the next day when he got ready and came down, जब कमरे से तैयार होकर आया, somebody was waiting there. Taxi was waiting there. He was brought to the conference venue. उसको conference venue पे लाया गया, where he was brought to the conference hall from the back door. पिछले दरवाजे से प्रोटोकॉल के साथ उसको अंदर लाया गया. And when he asked for coffee, they gave him a ceramic cup, जो में जो है ना वो चीनी का खूबसूरत कप में उसको कॉफ़ी दी गई. But after 1 year, now he's not under secretary. He came there. Nobody was there, and he just used he came in the economic class. This time he was not having the privilege of a business class. Nobody was there to greet and receive him at the airport, and he found the taxi, went to hotel himself. On the next day, again nobody was there to welcome him, and he found another taxi, came to the conference venue, conference की जगह पर आया. And when he entered conference hall, nobody greeted him, nobody was there to welcome him like that as he was received last year. इसने किससे पूछा, वॉलंटियर से, कि कॉफ़ी कहाँ मिलेगी. तो उन्होंने कहा कि उस कोने के अंदर जो है ना वो एक कप है कॉफ़ी, वहाँ से जो ना, तो वहाँ से उसने उस आम जो डिस्पोजेबल जो कप है उसमें से कॉफ़ी उठाई और कॉफ़ी पी. तो उसने कहा दैट्स ऑल अबाउट द पोजीशंस. रिमेंबर दैट ह्यूमन इज़ इम्पॉर्टेंट, बट एक्चुअली द प्लेस इन पोजीशंस, जो आपको मकाम नसीब होता है अपनी मेहनत, स्ट्रगल या जो भी तरीके के साथ, वो तमाम प्रिविलेजेस आनर उसके साथ होते हैं. आज अगर आप मुझे सर कहते हो तो दैट्स नॉट इन ए ह्यूमन, बट वाट एवर द रोल एंड वाट एवर द प्लेस एंड पोजीशंस आई हैव, जिसकी वजह से तो हमें इन प्लेस और पोजीशंस के में आकर हमें जो है ना ईगोसेंट्रिक नहीं हो जाना चाहिए. हम भूल बैठते हैं कि ये चीज़ जो है ना वो हमेशा रहती है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये बहुत चीज़ें पोजीशंस, जब आप उस पोजीशन से उतरते हैं तो ये चीज़ें आपके साथ बाकी नहीं रहती. लाइफ इज़ रियली वंडरफुल जर्नी, बट इट इज़ philosophically it needs a proper understanding. It needs a proper exit calculation. It's not only that you should calculate your career and your other job and other risk and a daily routine. ये नहीं कि ज़िंदगी के रोज़ के मामलात में आपको कैलकुलेटेड होना चाहिए, लेकिन इन सब से बढ़कर जो असल मामला है वो लाइफ का है. लाइफ के मामले में भी हमें कैलकुलेटेड होना चाहिए, so that we can live a meaningful life. Okay, now you may enjoy this clip. A speech at a large conference, about 1,000 people. And he was standing on the stage with his cup of coffee and a styrofoam cup, giving his prepared remarks with his PowerPoint behind him. And he took a sip of his coffee and he smiled and he looked down at the coffee. And then he went off script
And he said, last year I spoke at this exact same conference. Last year I was still the undersecretary. And when I spoke here last year, they flew me here business class. And when I arrived at the airport, there was somebody waiting for me to take me to my hotel. And they took me to my hotel, and they had already checked me in, and they just took me up to my room. And the next morning I came downstairs, and there was someone waiting in the lobby to greet me, and they drove me to this here same venue. They took me through the back entrance and took me into the green room and handed me a cup of coffee in a beautiful ceramic cup. He says, I'm no longer the undersecretary. I flew here coach. I took a taxi to my hotel and I checked myself in. When I came down the lobby this morning, I took another taxi to this venue. I came in the front door and found my way backstage, and when I asked someone, do you have any coffee? He pointed to the coffee machine in the corner, and I poured myself a cup of coffee into this here styrofoam cup. He says the lesson is, the ceramic cup was never meant for me. It was meant for the position I held. I deserve a styrofoam cup. Remember this. As you gain fame, as you gain fortune, as you gain position and seniority, people will treat you better. They will hold doors open for you. They will get you a cup of tea and coffee without you even asking. They will call you sir and ma'am, and they will give you stuff. None of that stuff is meant for you. That stuff is meant for the position you hold. It is meant for the level that you have achieved of leader or success or whatever you want to call it. But you will always deserve a styrofoam cup. Remember that. Remember that lesson of humility and gratitude. You can accept all the free stuff. You can accept all the perks. Absolutely, you can enjoy them. But just be grateful for them and know that they're not for you. I remember getting off the Acela. I took the Acela from New York to Washington, D.C. And I got off the train like everybody else. And I was walking down the platform like everyone else, and I walked past General Norty Schwartz, who used to be the Chief of Staff of the United States Air Force, the head of the Air Force. And here I did, you see a guy in a suit, schlepping his own suitcase down the platform just like me. And just a couple months ago, he was flying on private jets and he had an entourage, and other people carried his luggage. But he no longer held the position. And so now he got to drag his own suitcase. And never did it sort of remind me more that none of us deserve the perks that we get. We all deserve a styrofoam cup. So that's really important, that every one of us deserves that styrofoam cup. Humanity is the beauty of your life. Ajzi. I believe in that. कहते हैं अब्बासी सल्तनत का वो खलीफा था वासिफुल्ला, उसकी इतनी बड़ी आँखें हुआ करती थी कि किसी की हिम्मत नहीं होती थी उसकी आँखों में देखने की। और फिर उसी की किसी जंग के दौरान किसी खीमे के अंदर मौत हो गई थी, और नॉर्मली आमतौर पे किसकी ज़रूरत नहीं होती थी उसके खीमे में जाने की। 2 दिन के बाद जब उसके खीमे में देखा गया कि वो मर चुका है, लेकिन उसकी बड़ी आँखों को चूहा खा चुका था। क्वेश्चन इज दैट वॉट एवर द थिंग्स वी आर प्राउड ऑफ, जिस चीज़ पर हमें फ़ख्र होता है, समटाइम मैं हमेशा कहता हूँ 4 चीज़ें इंसान को मगरूर करती है। व्हेन यू गेट ब्यूटी यू बिकम प्राउड। जब आपके पास हुस्न आ जाए तो इंसान को जो है ना वो एक नेचुरली उसके अंदर एक किस्म की जो है ना अना आ जाती है। व्हेन यू ग्रो रिच मनी आल्सो मेक्स यू ईगोइस्ट। ये भी चीज़ आपको ईगोइस्ट बना सकती है। इवन नॉलेज, इल्म जब आता है तो भी इंसान के अंदर ईगो आ जाती है। नॉलेज मेक्स यू ईगोइस्ट। एंड पावर, दैट मे बी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर लाइक दैट। आप जब इक़्तिदार में आते हैं तो भी आपको जो है ना वो एक आपके अंदर एक अना आ जाती है। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये 4 चीज़ें जब भी आपके पास आ जाए तो अना की बजाय ये फ़ख्र का लम्हा नहीं होता है, ये फ़िक्र का लम्हा होता है। हम आज की क्लास को बाबा कबीर की इस बात पे ख़त्म करेंगे। उसने कहा था कि अगर घर में दौलत और कश्ती के अंदर पानी आना शुरू हो जाए
तो इसको दोनों हाथों से बाहर निकालना, नहीं तो डूबोगे। यकीन माने, लाइफ इज़ ऑल अबाउट आर्ट. Living life is an art, and living a successful life, it needs more care and more humanity and more seriousness. Otherwise, we have seen so many people, they physically or materialistically they are very rich, but they are living very poor life. I have met many people, they have everything, every comfort of a life is available with them. Their bank balance is beyond count, still they are looking for a peaceful moment in their life. So I believe that living life is an art, and living a successful life comes out of these things when we live with humanity, when we live with compassion, when we live with sympathy, and when we live with respect and care. Thank you very much. See you on day after tomorrow in the next class, and hope you must have enjoyed this session. Till that, take very much good care of yourself. Bye bye. Thank you very much.